dear 10th class students, Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. Today it is exercise number 8.1. Question number first है in triangle ABC which is right angle at B. ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और जो राइट एंगल एट B है, if AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, we have to determine these things. ठीक है, फर्स्ट हमें निकालना है sin A और उसके बाद निकालना है cos A और दूसरा जो इसके बाद निकालना है sin C और cos C. ठीक है, so let's consider a triangle here. If this represents a right angle triangle, it is a right angle at B, it is A, B and C. ठीक है, it is right angle at B. Now it is given that if AB is equal to 24 centimeter, it is 24 centimeter. ठीक है, and BC is equal to 7 centimeter. BC is equal to 7 centimeter. now इसमें हम क्या करेंगे, we use here Pythagoras theorem. ठीक है, solution by Pythagoras theorem. we have Pythagoras theorem, आपको पता है जो हम यूज़ कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, that is hypotenuse square, that is hypotenuse square is equal to a square plus perpendicular square. ठीक है, तो यहाँ जो hypotenuse है, it implies that this AC square it is equal to AB square. ठीक है, plus BC square. और I write here that's AC square is equal to, it is 24 square plus 7 square. ठीक है, because AB is equal to 24 और AC square is equal to 24, it is 576 plus 7 square is 49. ठीक है, so it implies that AC square is equal to, it is 9 plus 6 plus 15, it is 2, it is 625. ठीक है, so it implies that AC square is equal to, it's 25 square. ठीक है, square and square will get cancelled. It implies that AC is equal to 25. ठीक है, जो इसका hypotenuse है is equal to 25. ठीक है, तो पहले क्या निकालना है हमें, sin A. ठीक है, sin A. now sin A, so it is equal to side opposite to angle A divided by hypotenuse. ठीक है, side opposite to angle A it is 7, so it is 7 divided by hypotenuse का it is 25. ठीक है, उसके बाद क्या निकालना हमें, cos A. ठीक है, cos A, cos A is side adjacent to angle A divided by hypotenuse. ठीक है, what is side adjacent to angle A here, it's 24. ठीक है, it's 24. what is hypotenuse here, it is 25. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है, दैट्स hypotenuse square it is equal to base square plus perpendicular square. ठीक है, तो बेस जो हमारे इट इज 24 सेंटीमीटर है और जो हमारा परपेंडिकुलर है इट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है, hypotenuse square शासन बराबर base square plus perpendicular square. ठीक है, that is AC square is equal to AB square plus BC square, that is AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, so AC square is equal to, what is AB square, it is 24 square plus it is BC it is 7 square. ठीक है, so AC square is equal to, it is 576 plus 49. ठीक है, so AC square is equal to 625. ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, ये 625 आएगा. ठीक है, तो 625 जो है वो स्क्वायर 25 आएगा. ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर विल गेट कैंसल, सो AC इज इक्वल टू 25. ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या निकाला है, sin A को मैंने पहले यहाँ पे निकाला है. नो एज यू ऑलरेडी नो दैट sin A इट इज इक्वल साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट इज 7/25. ठीक है, तो उसके बाद cos A. ठीक है, cos A को मैंने निकाला है, साइड एडिसेंट टू एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडिसेंट टू एंगल 24 और हाइपोटेन्यूज 25. ठीक है,
इसके बाद हमें निकालना है साइन सी। साइन सी, सो इट इज साइड opposite to angle C divided by hypotenuse, ठीक है। सो व्हाट इज साइड अपोजिट, इट दिस इज एंगल C है, इसका ये वाला साइड अपोजिट है, ठीक है। सो इट्स 24 मतलब हाइपोटेन्यूज है 25, ठीक है। तो इसके बाद क्या निकाला हमने, cos C, cos C, सो इट इज साइड एडिसेंट टू एंगल C divided by hypotenuse, ठीक है। What is side adjacent to angle C here? So this is the side which is adjacent to angle C here. So it is 7, ठीक है। It is 7 by it is 25, ठीक है। So इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है, sin A भी निकाला हमने, that is equal to 7 by 25, cos A को भी मैंने निकाला है, that is 24 by 25। इसी तरह sin C हमने निकाला है, that is 24 by 25। इसी तरह से हमने cos C को निकाला है, cos C that is equal to 7 by 25, ठीक है। तो ये चीज़ें निकालने के लिए इट इज़ गिवन दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल एट B, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ABC विच इज़ राइट एंगल एट B, ठीक है। तो गिवन दैट AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें डिटरमाइन कर रही थी, दैट इज sin A, cos A, sin C, cos C, ठीक है। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको तो पता ही है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दैट इज इस ट्रायंगल में दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, AC को हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। फिर हमने sin A को निकाला, cos A को निकाला, sin C को निकाला और cos C को निकाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।